السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کو انشاءاللہ انالائز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رول نمبر 14، 15، 16، یہ تینوں تو نہیں ہے، 17۔ سسٹر خالدہ آپ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے، تو اب آپ سٹارٹ وَإِذَا کریں۔ جی قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ میں واو جو ہے عاطفہ ہے، اذا ظرفیہ اور شرطیہ ہوتا ہے۔ اب آگے یہ شرطیہ ہوگا ادھر۔ ٹھیک ہے۔ قیلا جو ہے قاف واو لام اس کا مادہ ہے، باب نون سے ہے، فعل ماضی مجہول ہے، تو واحد مذکر غائب مجہول ہے، تو اس کا نائب الفاعل ہوا ہوگا۔ اچھا، کچھ ترکیب میں ہوا نائب الفاعل بتاتے ہیں، اور کچھ جو اس کا آگے مقولہ ہوگا نا اس کو نائب الفاعل کہا جاتا ہے۔ دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ہوا مانیں گے تو پھر آگے جو اس کا حصہ جو مقولہ ہوگا اس کو مفعول بنا دیں گے پھر، لیکن اگر ہوا کو نائب الفاعل نہیں بنائیں گے تو پھر جو مقولہ ہوگا اس کو نائب الفاعل بنا دیں گے۔ تو آگے لاہم پہ آ جائیں۔ لہم جار مجرور ہے اور متعلق فعل قیلا کے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آگے لا جو ہے یہ ناہیہ ہے، کیونکہ تف سے دونا تھا اور اس کا نون ڈراپ ہوا ہے، اس لیے یہ ناہیہ ویری ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔ تو تف سے دونا باب افعال سے ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر اور فاعل انتم۔ بابا بتا چکی ہیں۔ ہاں جی، باب افعال سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر فاعل انتم۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے اور آگے ہے فی الارضی، فی جارہ ہے، اور الارضی جو ہے مجرور ہے، یہ متعلق فعل تف سے دونا کے ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ نافیہ بنا۔ ٹھیک، اب اتنا حصہ جملہ فعلیہ، اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ کیا بنے گا اب یہ نائب الفاعل بنے گا۔ ٹھیک یا نائب الفاعل بنا لے، نائب الفاعل۔ ہاں، اور اگر ہوا کو آپ نے نائب الفاعل بنایا تو پھر اسی کو آپ مفعول بنا دیں گے پھر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اتنا حصہ کتنا کیا بنا قیلہ سے لے کے آگے تک کا؟ فعلیہ شرطیہ۔ وَإِذَا معقول القول ہوا نا، یہ لہم لا تفسدوا فی الارض۔ جی جی، یہ پورا جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا۔ فعلیہ شرطیہ بن گیا۔ گڈ، ترجمہ اب کریں۔ اس کا آگے جواب الشرط، جب جی جی اس نے ان سے کہا کہ مت تم زمین میں فساد برپا کرو۔ اس نے اسے کہا نہیں، جب کہا جاتا ہے یا کہا گیا، جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے حال میں اس لیے کیا کیونکہ پیچھے اذا آیا ہے، تو اذا کی وجہ سے حال میں ٹرانسلیشن کیا جا سکتا ہے ماضی کا۔ اور کہا جاتا ہے لاہوں انہیں، کیا کہا جاتا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت تم زمین میں فساد برپا کرو۔ بالکل ٹھیک۔ اب اگلا حصہ جو ہے اس کو بھی کمپلیٹ کر اب دیں۔ جو وہ دیکھتے ہیں، کاف واو لام اس کا مادہ ہے، وہی باب نون سے ہے، فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب، اور میری آئی تھی اور میں لیٹ، پتہ ہی نہیں چلا سگنل کا۔ جی کوئی بات نہیں، اب انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر جب آپ کا رول نمبر آئے گا نا آپ تب جوائن کیجیے گا۔ ہم فاعل، تو انما پہ آ جائیں سسٹر خالدہ۔ انما کلمہ حصر ہے اور اسے مائے کافہ کہتے ہیں، یہ انا پلس ما کا مجموعہ ہے، کیونکہ یہ انا کے اثر کو انا کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے مائے کافہ کہتے ہیں۔ باقی جس کا مائک انمیوٹ ہے، سسٹر نشاط آپ انمیوٹ کر دیں، سوری میوٹ کر دیں۔ جی ٹھیک ہے۔
माँ क्या है? इन्ना प्लस माँ का मजमुआ है और इसे माए काफा कहते हैं माँ को। जी, ये ये क्या इन्ना अमल के करता असर है? को खत्म कर देता है। परफेक्ट। ये माए काफा जो होता है ये इन्ना के असर को असरअंदाज नहीं होने देता, उसके असर को खत्म कर देता है। तो अब आगे हाँ चलें। जी, आगे है नाहनु ज़मीर मुनफसिल है, यहाँ मुब्तदा बन के आएगी और मुस्लिहूना इस्मुल फाइल है, खबर है, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ और ये इन्नमा नाहनु मुस्लिहून ये मफूल बही बना कालू के लिए। बिल्कुल ठीक। और अब इतना हिस्सा क्या और बना? फेल बाफाइल और मफूल बही से मिलकर जुमला फेलिया जवाब शर्त बना। जवाब शर्त बना, बिल्कुल परफेक्ट। तर्जुमा करें। कालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, वो सब कहते हैं बेशक हम ही इस्लाह करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, अब ये पिछली बात से जुड़ेगा ना कि जब उन्हें कहा जाता है कि जमीन में तो फसाद कहते मत हैं, करो तो वो कहते तो हैं या कहते तो हैं, उन्होंने कहा तो वो कहते हैं बेशक हम ही इस्लाह करने वाले हैं। हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं या हम ही इस्लाह करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि इसमें हसर एक कायम हो जाता है। इन्ना और माँ जब आ जाए तो हम ही सिर्फ ये इस्लाह करने वाले हैं, इस तरह का एक तर्जमे में एक जोर पैदा हो जाता है हसर की वजह से। दैट्स गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन किया सिस्टर खालिदा आपने। रोल नंबर 18, इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इतने हिस्से को। जी, रोल नंबर 18। मैं हूँ मैम। आप सिस्टर निशात है ना? जी अच्छा, जी। स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम अला कलमा तंबिया है। हम्म इन्नहुम इन्ना हर्फ मुसब्बा बिल फेल और हम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब का सीगा। क्या बनेगा इन्ना के लिए? अब ये मैम ये बन जाएगा ये हुम की ज़मीर मुत्तसिल है ना? जी मुत्तसिल ज़मीर हर्फ नासिब के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको क्या फिर बनाएंगे हम? मार्फा मैम शुरू में आया। इस्म इन्ना बनाएंगे ना? मैम इसमें इन्ना बनाएंगे। इस्म इन्ना। तो ठीक, मेरा आगे मैंने अनाउंस किया था सिस्टर नजमा काफी देर। अगला पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है इंशाल्लाह। इसमें इन्ना है आगे जी निशात, हुमुल मुफसिदून। हुम पे आ जाए, हुम क्या है? हूँ मैम ज़मीर जमा मुज़क्कर गायब। इस ज़मीर को क्या कहेंगे? तो मैम ये खबर बन गई, यानी कि सेकंड इसमें ना हो गया ये ज़मीर मुनफसिल है या मुत्तसिल है, पहले ये बताएं। ये मैम मुनफसिल है। ये ज़मीर मुनफसिल है, और ज़मीर मुनफसिल की इराबी हालत क्या होती है? रफा होती है। रफा। ये हमेशा मरफू होते हैं, और ये इसको हम ज़मीर फासिल भी बना सकते हैं या फिर मुब्तदा एक अलग से एक और मुब्तदा बना सकते हैं। तो मैं ऐसे मुब्तदा बना लेते हैं, एक अलग जुमला इस्मिया हो जाएगा, फिर उसको खबर बना देंगे इन्ना की। अल मुफसिदून की तरफ आ जाए, ये क्या है? मैम ये फाइल बन के आ रहा है, इस्मुल फाइल। ये इस्मुल फाइल है और इसके अलावा खबर बन रहा है हुम मुब्तदा के लिए। जी, ठीक हो गया। अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलके कौन सा जुमला हुआ? जुमला इसमें। जुमला इस्मिया। अब ये पूरा जुमला इस्मिया इन्ना के लिए क्या बनेगा? अच्छा मैम खबर बन जाएगी। ये इस खबरू ना इन्ना हो खबर जाएगी। इन्ना। जी। और इसकी दूसरी तरकीब ये हो सकती है कि इस हुम को बिल्कुल हटा ही दे, ये सिर्फ बस लिखने में रहे और एक ताकीद, एक जोर पैदा करने के लिए हो, तो इसको हम कहेंगे ज़मीर फासिल। ठीक है, ज़मीर फासिल इसको लिख दे यहाँ पे, और कुछ मुब्तदा लिखने की बजाय बाकी सब कुछ यही रहे, ज़मीर मुनफसिल मरफू, और यहाँ पे लिख दिया जाए फासिल। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम इसको कुछ बनाएंगे नहीं, ग्रामर के लिहाज से इसको कुछ भी नहीं एनालाइज करेंगे। तो इस वक्त ये जो खबर है इसको कह देंगे खबर इन्ना, डायरेक्ट खबर इन्ना की बना देंगे। तो फिर वो मुब्तदा ये इस्मो इन्ना अपनी खबर इन्ना से मिलके जुमला इस्मिया, या फिर एक तरीका यही है जो मैंने फिलहाल किया हुआ है कि ये पूरा एक और जुमला इस्मिया बन जाएगा। तो इसका ट्रांसलेशन करें। जान लो यकीनन वह लोग ही फसाद फैलाने वाले हैं।
آگاہ ہو جاؤ یا جان لو یا دیکھ لو، جسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں کان کھول کے سن لو یہ چیز کہتے ہیں ذرا غور سے سن لو یا دیکھ لو، آگاہ ہو جاؤ. تو یہ چیز ایک اگلے کو ہلا کے بات کرنا ہوتا ہے نا، اس کو ذرا ایک جوڑنا، آگاہ ہو جاؤ. تو اس طرح سے یہ بات ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لیکن انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایک جھنجھوڑ کے مطلب ایک عام سی بات نہیں، اس کو ان کو بہت تاکید سے کہا جا رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو کہ تم ہی فساد کرنے والے ہو. تو اس طرح سے اس میں ایک لب و لہجہ ہے اس آیت کے اندر. تو جی سسٹر نجمہ یہ والا حساب کر دیں. جی میم السلام علیکم. وا وعلیکم. حرف عطف ہے جی اور لا کو حرف مشبہ بالفعل ہے اور لا نفی غیر جازم ہے. اچھا، یہ جو لاکن ہے نا یہاں پہ اس کو استدراک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا حرف استدراک. یہ صرف پچھلی کسی بات کی ایک نفی کرنا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن کے طور پہ، جیسا ہم اردو زبان میں بھی لیکن کہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کہ ایسا نہیں ایسا ہے. ٹھیک، تو چلے اب اگلا کرے. لا کیا ہے؟ یشعرون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب. لا اور کون سا لا ہے؟ اس کا جی میم لا کون سا والا لا ہے؟ یہ لا کو بتا دیا تھا لا آپ نے. نفی غیر جازم ہے. لا غیر نفی ہے، جازم ہے میم. جازم نہیں ہے یہ. نہیں غیر یہ جازم ہوا نا میم. غیر جازم، اچھا آپ نے بولا ہے. اچھا، اس کو بھی غیر جازم کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس لا نفی ہے. لا نہیں جب آئے گا تو آپ نے اس کو ساتھ بتا دیں تو اچھی بات ہے کہ یہ جازم ہے، کہ یہ اگلے اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. لیکن لا نہیں نفی کے ساتھ غیر جازم کہنا ضروری نہیں ہے. یشعرون، اس کے بارے میں بتائیں. یہ فعل مضارع ہے میم اور جمع مذکر غائب، شین اینڈ را اور باب نصرہ سے ہے. یہ مادہ ہے اس کا شین اینڈ را باب نصرہ سے. اور ہم یہ جو فاعل. ہے نا یہ حال بنے گا مفسدون کا. مفسدون کے اندر جو ہم کی فاعل ہے اس یہ کو پورا وہ جملہ جو فعلیہ حال ہو کے، یہ پورا جی جملہ میم فعلیہ ہو کے نا عطف ہو جائے گا معطوف، کیونکہ بہت عطف آ رہا ہے نا. حال اگر بناتے تو اس واؤ کو پھر ہمیں حالیہ بنانا پڑتا، اور واؤ حالیہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ معطوف ہو رہا ہے پچھلے جملے کے اوپر. اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ لیکن شعور نہیں رکھتے. لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. جو پچھلی آیت میں تھا نا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ تم ہی فساد کرنے والے ہو، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، کہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہی اصل میں فسادی ہیں، وہی اصل میں فساد مچا رہے ہیں، اصلاح نہیں کر رہے بلکہ فساد کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ. اب اگلی آیت کو ہم اس کو بھی ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے. تو رول نمبر 19 آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سائرہ سٹارٹ کریں. جی واو حرف ہے، اذا ظرف ہے. حرف کون سا والا حرف بنائیں گے آپ اسے؟ عطف کریں گے. نہیں، اس یہاں سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، استئناف کر دیں گے. آگے اذا پہ آ جائیں. ظرف ہے. اذا ظرفیہ شرطیہ. ٹھیک، جی آگے. قیلا فعل ہے. ٹھیک. یہ مجہول ہے. اور اور یہ مجہول کون سا ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ یہ ماضی ہے، ٹھیک، کیونکہ ماضی اذا کی وجہ سے یہ ماضی میں ہم ترجمہ کریں گے. لہم یہ جار مجرور ہے. یہ آمینو یہ فعل ہے. فعل ہے کون سا، ماضی مضارع یہ مضارع ہے. یا امر؟ آمینو ماضی ہے، ماضی ہے. تھوڑا سا اور کریں، ماضی مضارع امر. امر ہے، سوری میڈم جی، امر ہے. آمینو امر ہے. امر ہے، بالکل. اور کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ امر ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آمینو یہ زیر سے
زیر سے آپ کو زیر اندازہ ہوگا زیر اگر میم کے اوپر زبر آ جائے تو یہ آمنو ہوتا اگر تو ماضی ہو جاتا. فعل ماضی تھا، لیکن چونکہ یہ نیچے زیر ہے تو یہ فاعل کے وزن کے اوپر ہے، سوری افعیل کے وزن کے اوپر ہے، تو یہ افعیل جو ہوتا ہے یہ باب افعال کا فعل امر ہوتا ہے افعیل. تو جی اب یہ ہے آمین. آمین اس میں حمزہ کے اوپر یہ جو مد ہے اس کے اندر 2 حمزہ ہے، اور یہ جی آگے ہاں انشاءاللہ اس کی میں ڈیٹیل بتاتی ہوں اگلی سلائڈ پہ انشاءاللہ، اگلی سے اگلی کہ یہ آمنو جو ہے یہ کیسے بنتا ہے. تو آمینو اس پہ آرڈر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہو گیا. پہلے اس کو متعلق بنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اب آمینو پہ آ جاتے ہیں کہ یہ فعل امر ہے، حمزہ میم نون روٹ لیٹرز باب افعال سے، انتم فاعل ہے اس کے اندر. آگے آ جائیں کما پہ. یہ کما کیا ہے باجی؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اس کے اندر کاف جو ہے نا حرف جر ہے، اور ماں جو ہے یہ ماں مصدریہ ہے، ماں حرف مصدریہ ہے، اور یعنی کہ یہ جو اپنے بعد میں آنے والا جو فعل ہوگا اس کے معنی کو مصدر میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، تو جی آمنا کے اوپر آ جائیں. ابھی آپ آمنا کا بتائیں اس میں یہ کیا ہے. جی آمنا یعنی یہ فعل ماضی ہے. اب اس وقت یہ فعل ماضی ہے کیونکہ میم کے اوپر دیکھیں زبر ہے، تو یہ جی اس کے افعالہ سے تھا. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہوا. اب روٹ لیٹرز کیا ہے؟ یہ حمزہ میم نون. ٹھیک، کون سے باب سے ہے؟ یہ دیکھیں اس کے اوپر مد لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر 2 حمزہ ہے. ایک حمزہ تو روٹ لیٹر کا ہے، دوسرا حمزہ پھر اس کا مطلب باب کا حمزہ ہے. تو ایسا کون سا باب ہے جس کے اندر حمزہ آتا ہے؟ باب افعال. اچھا ٹھیک ہے، باب افعال میں ایک حمزہ آتا ہے اور ایک اس کا یہ اپنا روٹ لیٹر حمزہ ہے. 2 حمزہ جب اکٹھے ہوئے تو تب وہ آمنا بنا پھر. ٹھیک ہے، جی آگے جی الناسو کیا بنے گا؟ یہ اسم ہے، اسم فاعل ہے. اسم الفاعل نہیں ہے، اسم تو ہے لیکن یہ اس وقت فاعل بنے گا. اس وقت فاعل بنے گا. جی، اور اب اتنا حصہ کیا بنا؟ آمن الناسو کیا بنا؟ کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے نا یہ بھی صلہ بنے گا، کیونکہ حرف مصدریہ جو ہوتا ہے ماں مصدریہ اس کا بھی صلہ ہوتا ہے جس طرح اسم موصول کا صلہ ہوتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ اس کے اندر ہم ضمیر نہیں ڈھونڈتے کہ جو کہ پیچھے لوٹ رہی ہو، ضمیر عائد اس میں نہیں ڈھونڈنی پڑتی. جبکہ اسم موصول کے اندر ہم جو اس کا صلہ بنتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہونی چاہیے جو اس اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. ٹھیک ہے، تو جی اب کیا ہے کہ یہ جو اس حرف مصدر اپنے صلہ سے مل کر کما حرف جر کے لیے کیا بنے گا؟ یہ مجرور بنے گا. مجرور بنے گا. اور جار مجرور مل کے آمینو فعل کے لیے کیا بنے گا؟ یہ مفعول بنے گا، متعلق بنے گا. متعلق بنے گا، بالکل. جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے نا تو جار مجرور متعلق بنتے ہیں. تو جی اب آمینو فعل اپنے انتم فاعل اور متعلق سے مل کر کون سا جملہ بنا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ قیلہ کے لیے کیا بنے گا؟ ماضی مجہول کے لیے یہ نائب فعل. نائب فاعل بنے گا، بالکل نائب فاعل. اور اب یہ قیلہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ اذا شرطیہ بھی ہے پیچھے، تو اس کو کہیں گے جملہ فعلیہ شرطیہ. اس جملہ فعلیہ کے اندر ایک شرط ہے، شرط کا مفہوم ہے. تو اب اس کا ترجمہ کریں. جی ہاں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لائے، اور جب کہا جاتا ہے انہیں جیسے دوسرے لائے لوگ ایمان لائے ہیں. نہیں آرڈر کریں. آمینو ایمان آرڈر لاؤ، ایمان لاؤ. ہاں، کہ تم سب ایمان لاؤ. کیسے ایمان لاؤ؟ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں.
हाँ जी, दूसरे लोगों के ईमान जैसा। आप देखें यहाँ पे जो तर्जमा किया गया है इसमें मस्दर के लिहाज से इसको ट्रांसलेट किया गया है कि दूसरे लोगों के ईमान जैसा। अब ऐसा कहा जाएगा कि जैसे दूसरे ईमान लाए थे या लाए हैं, वो एक उसके अंदर पूरा फेल आ जाएगा जिसके अंदर वो जमाना भी पाया जाएगा, तो मस्दर वाला फिर उसके अंदर जो वो मायनी है ना वो खत्म हो जाएगा। तो मस्दर के लिए लाने के लिए दूसरों के ईमान जैसा, इस तरह से ट्रांसलेशन किया जाएगा। जी हाँ। गुड सिस्टर सायरा, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने। रोल नंबर 20 आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी मोमिना स्टार्ट करें। जी मैम, ये कालू फेल जो है माजी है और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा हम फाइल है। फिर अनुमिनु हमजा इस्तिफाम का है और नुमिनु फेल मुजारे और जमा मुज़क्कर का है और इसमें नहनु फाइल है। फिर और इसके रूट कमा, लेटर्स क्या हैं? इसके रूट लेटर्स क्या हैं? ये आमना युमिनु हमजा मीम नून बाबे फाइल है। वेरी गुड। अभी जो पीछे माजी आया था, अमर भी आया, अब मुदारे भी आ गया, तो इस मुजारे। हमजा मीम नून के आप समझे कि पूरी ही गर्दान माजी मुदारे अमर सारा ही कवर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे कमा पे आ जाए। कमा काफ हर्फ जर है ये, और ये जो है तो फिर आगे माँ जो है मसदरिया है यहाँ पर। फिर बिल्कुल इसके आगे का हिस्सा जो है अब ये सिला बनेगा इसका। आमना फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब, और असुफहाउ ये जो है जमा इस्मुल फाइल है, ये जमा है, ये इसम की जमा है, सफुन की सुफहा, जमा तो मुकस्सर है, ठीक हो गया। जमा मुकस्सर है। फिर ये जो है आमना के लिए क्या सुफहा, बनेगा? ये फाइल बन रहा है आमना फाइल। फेल का। तो फिर ये जुमला फेलिया होकर ये जो है माँ मस्दरिया के लिए सिलतुल मौसूल हर्फी बन गया। अब ठीक। माँ मस्दरिया अपने सिलतुल मौसूल हर्फी से मिलकर ये मजरूर हो गया काफ हर्फे जर के लिए। तो फिर ये काफ हर्फे जर और ये मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हो गया अनुमिनु नुमिनु फेल के लिए। फिर नुमिनु फेल अपने मुतालिक से मिलकर जो है फाइल ये और पूरा, मुतालिक। जी फाइल मुतालिक से मिलकर ये पूरा जो है महल्लन मंसूब माकूला या मफूल बिही बना कालू के पहले लिए। कहेंगे कि ये पूरा जुमला फेलिया है, अब ये पूरा जुमला जी फेलिया। पूरा हाँ पूरा जुमला फेलिया होगा महल्लन मंसूब मकूला या मफूल बिही बन रहा है वेरी कालू गुड। फेल। अब फिर ये क्या? कालू फेल अपने फाइल हम और मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये जवाब शर्त बन जाएगा पिछली वाली शर्त का, जो इज़ा के पहला वाला जुमला है। वेरी गुड। और जवाब शर्त मिलकर ये जुमला शर्तिया बन गया। ठीक, आप इसका तर्जुमा करें। तो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे बेवकूफों का ईमान लाना। बिल्कुल मसदरिया तर्जुमा मस्तिया के मुताबिक आपने किया है कि बेवकूफों के ईमान की तरह का, उनके जैसा क्या हम ईमान लाएं। बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ पे जवाब शर्त कंप्लीट हुआ। अच्छा, यहाँ पर अब अगली स्लाइड में माशाल्लाह मोमिना बहुत बेहतरीन किया आपने। यहाँ पे महमूज का कायदा, क्योंकि आमना या युमिनु काफी बार आया है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। जब दो हमजा इकट्ठे आए और जिसमें से पहला हमजा मुतहरिक हो, चाहे वो जबर से हो, पेश के साथ या जेर के साथ, दूसरा हमजा जो है वो साकिन हो, दूसरा हमजा साकिन हो, तो हम जो है अभी जो है मैं सिर्फ ये पहली वाली सिचुएशन को बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारी जो सिचुएशन है वो इस वाले के पहले वाले के मुताबिक है। तो उसमें क्या है कि दूसरा हमजा पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो पहला हमजा क्या है? जबर के साथ। तो दूसरा हमजा अब देखेंगे कि जबर की दोस्ती किसके साथ है। जबर का मुवाफिक हर्फ क्या है? जबर से मुवाफिक हर्फ अलिफ है, अलिफ। तो ये जो हमजा था इसको हम अलिफ में बदल देंगे। हमजा और अलिफ में फर्क है, ठीक है। जहाँ पे मैंने महमूज का लेक्चर बताया था वहां पर मैंने
حمزہ اور الف کا فرق بتایا ہوا ہے. لیکچر نمبر مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن محموز کے قواعد جہاں پر تھے. تو یہ جو حمزہ ہے یہ الف میں بدل گیا. ٹھیک ہے, الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی, جزم تک نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب اس کو یا تو اس طرح سے بھی آپ کو مصحف میں لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے, یا پھر آپ کو یہ کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے, یا پھر آپ کو یہ مد کے ساتھ لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے. مختلف مصحف میں یہ مختلف انداز میں, ان 3 انداز میں سے کسی بھی انداز میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ سکتا ہے. تو اب ہماری جو سچویشن ابھی آگے پیش اور زیر کے اوپر میں نہیں جا رہی, کیونکہ یہ آپ کو اس پہ اگر کرنا ہو تو آپ کو محموز کا لیکچر دیکھنا پڑے گا کہ اس میں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے. ابھی ہماری سچویشن کے مطابق 2 حمزہ کب آ رہے ہیں؟ باب افعال میں. کہ باب افعال میں کیا ہے کہ ایک باب جو ہے وہ باب کا جو پہلا والا یہ حمزہ ہے نا, یہ اس کا ہے باب افعال کا, اور جو دوسرا حمزہ ہے یہ روٹ لیٹر ہے. ساکن والا جو حمزہ ہے یہ روٹ لیٹر ہے. افعلا, امنا. ٹھیک ہے, افعلا کے وزن پہ آپ ڈالیں تو یہ بنا امنا. تو پھر وہ رول اپلائی ہوا کہ دوسرا حمزہ تبدیل ہو گیا الف میں. تو یا تو آپ ایک حمزہ لکھیں اور ایک صرف الف لکھیں, یا پھر آپ کھڑی زبر سے لکھ لیں, یا پھر آپ مد سے لکھ لیں. تو میں ایک وقت میں ابھی ایک ہی لکھ سکتی تھی تو میں نے کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہے. تو اسی طرح یہ آگے کے باقی کے آمنو دیکھیں جمع کا صیغہ ہے, بہت زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ آمنا, تو یہاں پہ 2 نون جو ہے یہاں پہ پھر مضاعف کا رول اپلائی ہوا کہ یہاں پر 2 نون آنے کی وجہ سے اس پہ شدہ آ گئی, تشدید آ گئی. اور یہ مذکر حاضر اور مؤنث کے صیغے بن گئے, مثنیٰ کے صیغے اور جمع کے, اور مذکر اور مؤنث کے صیغے. آمنتم بھی کافی استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں. اور آمنتو, میں ایمان لایا, اور یا میں ایمان لائی. اور یہاں پہ آمنا, یہ بھی ابھی آگے کسی آیت میں یہ والا صیغہ بھی آئے گا کہ ہم ایمان لائے. تو یہاں پہ بھی 2 نون تھے جس کی وجہ سے وہ مرج ہو گئے, ان میں ادغام ہو گیا. تو یہ یہاں پہ ماضی کی میں نے گردان جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے, مضارع کی گردان میں کوئی چینج نہیں آتا. تو اچھا, یہاں پر میں نے آپ کو یہ کیوں بتایا, یہ 3 مختلف طریقوں کا جو ہے مصحف ہے. اس میں آپ جو ہے آیت نمبر جو ہے یہ والی دیکھ لیں, آخری آیت جس میں ہے آمنہم. ٹھیک ہے, تو پہلے والے میں دیکھیں حمزہ کے ساتھ الف لکھا ہوا آ رہا ہے, حمزہ بھی ہے پلس الف بھی ہے, دونوں کو الگ الگ منشن کیا ہے. آپ اس دوسرے والے مصحف میں آئے تو یہاں پہ کیا ہے کہ آمنہم میں حمزہ جو ہے کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے. دیکھیں صورت ایک ہی ہے, ٹھیک ہے, لفظ ایک ہی ہے, لیکن لکھنے کا انداز رسم الخط مختلف ہے. یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ مد کے ساتھ آیا ہے. تو تینوں انداز جو ہے بالکل ٹھیک ہے. تینوں انداز میں سے کسی بھی مصحف میں آپ کو کوئی بھی انداز ملے, آپ کو رول پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر 2 حمزہ تھے, اس وجہ سے یہاں پر 2 حمزہ تھے. تو یہاں پہ یہ پتہ چل گیا یہ 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ دوسرا حمزہ الف میں بدل گیا. جہاں کھڑی زبر آ جائے یا مد نظر آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ 2 حمزہ تھے جس میں سے تب یہ مد اور کھڑی زبر آئی ہے. تو نیکسٹ میں کہوں, اب ہم کون سے رول نمبر تک پہنچے تھے؟ آئی تھنک رول نمبر 20 تک. تو سسٹر کوثر آپ نے اب جوائن کیا ہے, تو اگر آپ جوائن کرنا چاہتی ہیں اب یہ والا حساب کر لیں اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو, پھر ہم آگے رول نمبر 21 پہ چلیں گے انشاءاللہ. جی سسٹر کوثر. اچھا راہیلہ آپ سٹارٹ کریں. یہ اب آگے رول نمبر آنا ہے, رول نمبر 21 آنا ہے. وہ تو آج وہ کہی تھی گیسٹ آئے ہیں شاید ان کے. رول نمبر 23 ہے اویلیبل. راہیلہ آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہوا ہے, اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو آپ سٹارٹ کر دیں. مائک کو میوٹ کر دیں. پھر مومنہ آپ اس کو کیری آن کریں پلیز. میں آ جاؤں 24. آپ کا رول نمبر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ, آپ آگے جوائن کریں گے انشاءاللہ. جی میم. جی مومنہ آپ اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی میم, جزاک اللہ. اللہ حرف تنبیہ ہے, اور پھر انہم میں انا حروف مشبہ بالفعل ہے, اور یہ ہم ضمیر منصوب متصل جو ہے منصوب ہے, اسم انا بن جائے گا. اور یہ ہم جو ہے مبتدا یہ اس کو 2 ترکیب کرتے ہیں میم, جیسے آپ نے بتایا تھا.
बिल्कुल आप चाहे दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है। ये फसल करके छोड़ दें और असफाऊ को सीधे खबर बना दें, या दूसरी तरकीब है कि हम को मुब्तदा बनाएंगे, असफाऊ को इसकी खबर बनाएंगे, फिर ये मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इस्मिया होकर अब खबरू इन्ना बन जाएगा। फिर इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। और वाव आगे है, वाव पहले अतफ इसका बना लो। इसको ट्रांसलेट कर लें पहले। सुन लो, बेशक वो खुद ही बेवकूफ हैं। बिल्कुल। अब ये वही का जोर, ये आपने कहा वो खुद ही, तो ये जो जोर दिया किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे दो मुब्तदा आ रहे हैं, और अगर दो मुब्तदा ना भी बनाए, सिर्फ ज़मीर फासिल बना दें, तो भी यही वजह होगी कि ये ज़मीर फासिल ताकीद के लिए आती है। फिर तो दो मुब्तदा बनाए जाए तो भी यही है कि ताकीद बना हो जाएगी उसके अंदर एक, और बेशक इन्ना की वजह से वैसे ही उसके अंदर एक ताकीद है, बेशक कह के उसके अंदर मजीद एम्फसाइज किया गया है। गुड, तो अब इसका अगला हिस्सा करें। वलाकिन जो है ये भी हुरूफ मुशब्बह बिल फेल में से है, लेकिन जब ये जुमला फेलिया पर आता है तो हल्का हो जाता है, लाकिन्ना नहीं रहता बल्कि लाकिन हो जाता है। इसकी ये खास है। फिर ला हर्फ नफी है और इस्तदराक फिर इसको नाम दे दिया जाता है। इस्तदराक है ये आगे का जो पीछे थोड़ा सा इबाम हुआ है उसको दूर करने के लिए आता है। फिर या लमुना मजारे है, जमा मुजक्कर गायब का सिगा है, हुम इसमें जो है फाइल है, आइन लाम मीम बाब सीन से है। फिर ये जो है जुमला फेलिया बन जाएगा, और जुमला फेलिया होकर ये जो पीछे अतफ हो जाएगा मैम, या इसको हाल में बनाएंगे हुम का। हम का क्या करेंगे? हुम का हाल बना ले, वाव हालिया बना के। वाव कि हाल हालिया ये जो है, वाव हालिया तो जुमला इस्मिया पे आता है ना? नहीं, मैम फेलिया भी तो बन जाता है। मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, चले मैं इस पे चेक करूंगी वैसे, क्योंकि नहीं अगर मैम, हमने अगर तो अतफ बनाए फिर तो हम मातूफ ही बनाएंगे, फिर वरना अगर हमने हाल बनाना है फिर इसको हमें वाव हालिया यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर आप वाव हाल बनाए। हालिया जी। अगर एक तरफ आप यहाँ पे अतफ बनाए फिर आप कहें कि ये हाल है, तो फिर नहीं, वो दो अलग चीजें हो गई हैं। फिर या तो आप वाव हाल बना ले, इसको वाव हालिया कह के फिर हाल बना ले, चलो फिर ठीक है। ये इस होम का जो है उसका हाल हो जाएगा, कि उनका हाल ये है कि वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पाते। और लेकिन वो नहीं लेकिन वो जानते, या वो नहीं समझते, या वो नहीं जानते। ठीक हो गया, जी ठीक, गुड, माशाल्लाह, बेहतरीन। हमारी 13 आयतें हो गई हैं, और इंशाल्लाह अब इसको भी हम डिवाइड करते हैं, इस हिस्से को। जी, रोल नंबर 23 तो नहीं है, रोल नंबर 24। जी सिस्टर शाज़िया, आप आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, स्टार्ट करें। कोशिश करूंगी, आप साथ दीजिएगा, बाप भी थोड़े इंशाल्लाह। कच्चे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरफे इस्तानाजिया करेंगे ना इसको, इस्तेनाफ करेंगे ना इसको, अतफ नहीं बनाएंगे। इसको अभी हम पिछली बात से जोड़ सकते हैं कि अभी अच्छा, फिर पिछली इसको बात ही जोड़ी, या इस्तेनाफ बना के एक नया जुमला बना ले, या फिर पिछली बात से ही अगर जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, दोनों ठीक है ठीक इसमें। है, अतफ भी कर सकते हैं। हम्म। इज़ा मदाफ इलैहि है। अच्छा, यहाँ पे ये इज़ा जो है ना, ये अमूमन इसको मुदाफ भी बनाया जा सकता है, फिर आगे मुदाफ निकालना पड़ेगा, फिर मुदाफ इलैहि मिलकर उसको फिर किसी चीज का मुतालिक बनाया जाएगा, और मुतालिक फिर किसका बनाया जाएगा? अमूमन जवाब शर्त के। तो वो बड़ी लंबी तरकीब हो जाती है, तो आसान तरकीब ये है कि इसको इसम ज़र्फिया शर्तिया बना के साइड में बस कर दिया जाए, कि आगे इसका एक शर्त आएगा, एक जवाब शर्त आएगा, एंड दैट्स इट। तो इसम शर्त, आसान ये तरकीब है। इसम शर्तिया हो जाएगा। हम्म। ला फेल है, और माजी या मुदारे या अमर? ये माजी है। ठीक हो गया। और अब इसके रूट लेटर्स। लाम काफ वाव या, लाम काफ तो क्लियर नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा या था इसके अंदर, जो कि किस तरह गायब हुआ ये आपको इंशाल्लाह अगली से अगली स्लाइड पे आपको बताऊंगी। तो अब इसके अंदर फाइल क्या होगा? इसके अंदर वो हुम की फाइल होएगी। हाँ, और ये बाबे सीन से है, ठीक है, लकिया से या लकायु। अच्छा, आगे अल्लज़ीना मासूला है, वो अगर पीछे हमने ये मासूला बन जाएगा अल्लज़ीना। बिल्कुल ठीक। और आमनु
आमनु अलिफ मीम नून है इसका वो है, और ये माजी है और जमा का सीगा है, और नहनु की ज़मीर है इसके अंदर, और नाहनु की ज़मीर है, यानी हम हुम की ज़मीर है। और ये कौन से बाब से है? ये बाब अभी मेरे थोड़े कच्चे हैं। देखिए हमजा, अभी हमजा को डिस्कस किया था, हमजा के ऊपर मद है, जी तो कौन सा बाब है जिसके अंदर हमजा आता है, हमजातुल क़ता? मस्जिदुल फी का कोई बाब है जिसके अंदर हमजा आता है? एक हमजा तो इसका रूट लेटर है, दूसरा हमजा भी बाब का है, तो वो कौन सा जी बाब है जिसपे हमजा आता है? बाब मैंने इफ़ाल। बाबी फाल, ठीक हो गया जी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि बाब इफ़ाल एक वाहिद वो बाब है जिसका हमजातुल क़ता जिसके अंदर आता है, जो इसकी निशानी के तौर पर होता है। बाब तफ़ील में निशानी क्या है? शद्दा। बाब मुफ़ाला में क्या होता है कि फा कलिमा के बाद अलिफ नजर आ जाता है। तो इस तरह हर बाब की कोई ना कोई निशानी है। तो बाब इफ़ाल में क्या है कि आपको हमजा नजर आता है उसमें, जी और हम इसके अंदर फाइल हो गया। अब फाइल हो गया। जी ठीक है, आगे लेके चलें इसको। और कालू काफ वाव अभी लाम अभी अल्लज़ीना इसे मौसूल अपने सिला से मिलकर लकू के लिए क्या बनेगा? सिला, नहीं, सिला बना दिया ना, इसे मौसूल के साथ वो सिला बन गया। ठीक है, इसे मौसूल और ठीक वो है। आमनु पूरा सिला बना। अब ये जो है ये लकू फेल के लिए क्या बनेगा? अच्छा, फेल के लिए ये फाइल, नहीं, फाइल मौजूद है, हम फाइल मौजूद है, लकू फेल का हम फाइल मौजूद है, तो अब मफूल बनेगा ये माफूल बनेगा। ठीक है। ठीक है, अब हम जो है इस पे आगे चलते हैं कि यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा है लाकुल लदीना आमनू, तो ये जुमला फेलिया होके ये शर्तिया हो जाएगा इज़ा की वजह से। इसमें इज़ा शर्त आ रही है, इज़ा जब शर्तिया है तो इसका मतलब आगे हमें दो जुमले नजर आने चाहिए, एक को हम जवाब शर्त बनाएंगे, दूसरे को हम जवाबु शर्त जवाब बनाएंगे। बनाएंगे। तो अब कालू की तरफ आए। हाँ जी, कालू माजी है, जमा का सीगा है, हम की ज़मीर है, और काफ वाव लाम है, और हम इसमें फाइल है। और नून कौन सा है? मैं कह रही हूँ नून कौन सा है, यानी बाप कौन सा है, नून वो तो मैंने बोल ही दिया, हम फाइल है। अच्छा, जज़ाकल्लाह। आमन्ना इस पे आ जाए। अच्छा, आमन्ना रूट वर्ड है अलिफ मीम नून, और नहनु इसमें फाइल है, और और ये माजी है, मुदारी अमर। ये माजी है। ठीक हो गया, और बाबी फाल से हो गया। हाँ, ठीक है, तो बेफाल अब ये देखिए आमना ये आमना या आमनू या आमन्ना ये काफी इस्तेमाल हो गया इस सिगे से। ठीक है, इसी बाब जी। रूट लेटर से काफी गर्दान के सिगे आए हैं। अच्छा, तो अब ये पूरा जुमला फेलिया कालू फेल के लिए क्या बनेगा? कालू फेल के लिए जुमला फेलिया बनेगा। जुमला फेलिया कोई आमन्ना कुछ बनेगा ना, आमन्ना जो जुमला फेलिया था, कालू एक फेल है, उसके अंदर हम फाइल है, उन्होंने कहा, क्या कहा, वो क्या बनेगा? जो कहा जा रहा है वो क्या बनेगा? जवाब शर्त। नहीं नहीं, अभी कालू की से बात हो रही है। कालू के लिए ये वाला आमन्ना जो जुमला फेलिया है ये मफूल बनेगा, उन्होंने ठीक है। कहा, जो कहा वो मफूल बनेगा। फिर ठीक है। कालू फेल अपने हम फाइल और मफूल से मिलकर अब ये पूरा जुमला फेलिया जवाब शर्त बनेगा। ठीक है ठीक जी। है, अब ये जुमला फेलिया शर्तिया और जवाब शर्त होके ये पीछे अगर वाव अतफ इसको बनाया था तो इसको मातूफ कर दें, और अगर इसको इस्तिनाफ किया तो ये एक जुमला इस्तिनाफिया हो जाएगा। अब इसका तर्जुमा करें। और जब मुलाकात करते हैं उन लोगों से, हम्म, कहते हैं ईमान लाए, उनसे उनसे किन से? उनसे उनसे जो ईमान लाए। उनसे उनसे ठीक जो है। ईमान लाए, हम्म तो कहते हैं हम ईमान लाए। तो ये कहते हैं हम ईमान लाए। ठीक हो गया, और इस हिस्से को भी आप कर दें। ये वाव से वहाँ अतफ भी हो गया फिर आगे। इधर भी अतफ ही है, और इज़ा जो है वही हम करेंगे जो पीछे हमने इसको बनाया था, ठीक है, ज़र्फ़िया शर्तिया। ज़र्फ़ शर्तिया ज़माने ओके। और खलऊ खलवा इसका खलम वाव इसका होएगा रूट वर्ड। क्या रूट लेटर्स होगा? पहले तय माजी है मुदारे। ये माजी है, जमा का सीगा है, हम की ठीक है, इसमें अब इसमें फाइल खा है। लाम तो नजर आ रहे हैं, तो जो काला थर्ड रूट लेटर है हमजा। वो या है, अच्छा, या खा लाम खाली। या। अच्छा ठीक है, तो तो बाबे नून से है हम फाइल। हम अब आगे फाइल। आ जाए।
इला इला जार मजरूर है जो इला मुतल्लक सिर्फ के इला इस वक्त सिर्फ जार है, मजरूर अभी जार ढूंढते हैं। आगे मजरूर आगे जो शयातीनिहिम, ये क्या बनता है? शयातीन। अच्छा, इसका रूट वर्ड है शीन नहीं, या इसके रूट लेटर्स को छोड़ें, आप ये बताएं कि ये वाहिद है, मुसन्ना है, ये जमा? ये जमा जमा सालिम है, जमा मुकस्सर? ये जमा ये जमा मुकस्सर। सालिम सालिम नहीं नहीं, जमा मुकस्सर है ये, मुकस्सर मुकस्सर। ठीक है। और हम इनकी जमीर जो है साथ में, जी फिर से पूछिए। जो हम की जमीर साथ अटैच है, ये क्या है? ये इसका इसकी क्या अरबी हालत है? अच्छा देखिए, अगर ये मुदाफ बन रहा है तो वो आगे क्या होगा फिर? हाँ जी, तो ये मुदाफ इलाई बनेगा ना, तो मुदाफ इलाई की अरबी हालत क्या होती है? वो मरफू होती है, तो मुदाफ जी इलाई की अरबी हालत क्या होती है? वो मजरूर होती है मजरूर होती है। तो इस वक्त ये जमीर मुत्तसिल मजरूर होके जी। मुदाफ इलाई बन रहा है। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी हरफ जर इला के लिए क्या बनेगा? ये मुतल्लक के नहीं, पहले खबर हरफ जर के लिए बनाए। हरफ जर है तो इसके लिए ये हरफ जर के लिए पूरा मुरक्कब इजाफी क्या बनेगा? मजरूर, हरफ जर के लिए मजरूर होएगा, मजरूर। अब जार मजरूर मिल के खलाऊ फेल के लिए क्या बनेगा? के लिए मुतल्लक के खबर। अब जो है इतना हिस्सा, अब इसको क्या बनाएंगी? पीछे इदा इस है इसको जुमला फेलिया और साथ में क्या कहेंगी? शर्तिया। शर्तिया। अब कालू की तरफ आ जाए। कालू वही सेम इसके रूट वर्ड्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और चले इसको मैं ले जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि काफी बार आ चुका है। जी, तो आगे और इन्ना की तरफ आ जाए। मुशब्बा बिल फेल है, और ये अपने अगले लफ्ज को अगले वाले लेटर को मंसूब भी कर देता है, तो इसने मंसूब किया है वो किसको जार मंसूब मजरूर। किया है? इसने किसको मंसूब किया यहाँ पे? अब इसमें इस्मो इन्ना किधर है? कौन सी चीज है? इन्ना इन्ना जो है ये इन्ना में जो मुशब्बा। अलिफ नजर आ रहा है ना आपको, इन्ना में जी जो अलिफ है वो इस्मो इन्ना है, ठीक है? जी जी। ठीक हो तो गया। तो वो जो अलिफ है वो नाहनु की तरफ जा रहा है, जमा के जी लिए है। इन्नी होता तो वो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा होता। फिर आगे आ जाते हैं माआकुम। वो जार मजरूर है मुतल्लिक। जार नहीं होता, जर्फ वाला, ओ जर्फ की करने वाला मुरक्कब ये इजाफी मदाफ बन रहा है मुदाफ ये। इलैहि, ये मदाफ मुदाफ हाँ। इलैहि हो जाएगा। अब ये पूरा मुरक्कब इजाफी होके इन्ना के लिए क्या बनेगा? इन्ना की खबर मुतल्लिक के खबर। खबर। हाँ, मुतालिक है, वो खबर बना लिया खबर। ये असली खबर यहाँ मौजूद नहीं है तो इसको खबर की जगह दे दी गई। अच्छा, अब ये पूरा कौन सा जुमला बना? ये जुमला फेलिया। इन्ना से, इन्ना माअकुम, इतना हिस्सा। इसम इन्ना, खबर इन्ना। इन्ना का इसम। इन्ना का इसम और इन्ना की खबर मौजूद है ना, तो इसम इन्ना खबर इन्ना मिलके जुमला इस्मिया बना। जुमला इस्मिया। ठीक है। अब ये पूरा जुमला इस्मिया कालू फेल के लिए क्या बनेगा? ये पूरा जुमला इस्मिया कालू के लिए उसकी मुतल्लिक की खबर नहीं, मफूल बनाएंगे ना। मफूल बन जाएगा। ठीक है, फाइल मौजूद है, मफूल के उन्होंने कहा, जो कहा जा रहा होता है वो फिर मफूल बनता है। अब कालू फेल अपने हम फाइल और मफूल से मिलकर वो पहले शर्तिया आ गया ना, तो ये जवाब शर्तिया हो जाएगा। ये जवाब शर्त हो जाएगा और ये फिर पूरा पिछले वाले जुमले पे आतफ हो जाएगा। आप इसका तर्जुमा करें। अच्छा, और जब वो मुलाकात करते हैं अपने इन शैतान भाइयों की तरफ या सरदारों की तरफ, तो कहते हैं मुलाकात नहीं, यहाँ पे मुलाकात नहीं। और जब वो अकेले होते हैं, खलाऊ अकेले होने से, खलवत इसी से निकला है ना, तन्हाई। और जब वो अकेले होते हैं, और जब वो अकेले होते हैं इन शैतान सरदारों की तरफ या भाइयों की तरफ, तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम ही बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, दैट्स गुड। इतना हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। बहुत अच्छा किया आपने सिस्टर शाजिया। इसी तरह इंशाल्लाह मजीद इम्प्रूवमेंट आएगी। बस अभी प्रैक्टिस करनी है, ये जो जुमले आपस में जैसे जुड़ते हैं ये नहीं, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करते करते काफी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आप में इंशाल्लाह।
अच्छा, पिछले दो आपके पास फेल आए थे, एक था खलाऊ और एक है लाकू, ये दो आए थे। तो देखते हैं ये खालाऊ कैसे बना और लाकू कैसे बना। तो ये हमने खाला जो बाब नसरू के ऊपर रखा तो ये खालायू बना, और लाकीयू बना समेऊ के ऊपर। अब रूल है कि जब मादे का हर्फ इल्लत, दोनों पे हर्फ इल्लत मादे का या है और सीगे का हर्फ इल्लत वाव, वाव से पता चलेगा कि यहाँ पे जमा का सीगा यानी हुम है, दोनों इकट्ठे आ जाए तो मादे का हर्फ इल्लत गिर जाएगा, यानी जो या है, जो मादे का रूट लेटर है, जो या दोनों में रूट लेटर था वो गिर जाएगा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी, खालाऊ और यहाँ पे बन जाएगा अब मैं इसको, मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल है, लाक की आगे मैं पढ़ नहीं पा रही। तो अब इसमें सिचुएशन में क्या है कि अब सीगे के हर्फ इल्लत, सीगे का ये जो हर्फ है, ठीक है, सीगे का जो हर्फ है, सीगे के हर्फ से पिछले वाले हर्फ पर अगर तो जबर हो तो वो बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे खलाऊ में देखें जबर है तो ये बरकरार रहेगी, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं खलाऊ, ठीक है, इसको हमने आसानी से पढ़ लिया इसलिए इसमें हम कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी हरकत होगी यानी जेर या पेश, तो ऐसी सूरत में फिर वो हरफ इल्लत के मुवाफिक हरकत में बदल जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये लाकी काफ के नीचे जेर है, अब जेर और वाव की तो आपस में बनती नहीं है, इसको हम आप सभी अगर पढ़ने की कोशिश करें तो आप इसको नहीं पढ़ पाएंगी कि जब आप कई की जेर प्रोनाउंस करेंगी तो वाव को कैसे आप प्रोनाउंस करेंगी, तो नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी सूरत में हम वाव को तो नहीं तब्दील कर सकते क्योंकि वाव ही से तो पता चलेगा कि ये सीगा कौन सा है, इसमें जमा का सीगा है, ये हुम इसके अंदर फाइल है, इसलिए वाव को तो हम हिला नहीं सकते। तो हमें किसको हिलाना पड़ेगा, किसको गिराना पड़ेगा, जेर को खत्म करना पड़ेगा। तो हम इस जेर को खत्म करते हैं और वाव से मुवाफिक हरकत पीछे लेकर आएंगे। तो वाव से मुवाफिक हरकत है पेश, तो इसको पेश ले आएंगे तो ये इस तरह से बना लाखू। तो ये दो आपके फेल यहाँ पे मैंने कवर किए। तो अभी इतने हिस्से को कौन सी सिस्टर करना चाहेंगी जिन्होंने अगर किसी आयत में कम पढ़ा किया है? आई थिंक सिस्टर नजमा को छोटी सी आयत मिली थी और सिस्टर नशात को भी, अगर वो करना चाहें या कोई भी सिस्टर आना चाहें तो आ जाए, जल्दी से अपना माइक अनम्यूट करके आ जाए जो करना चाहें। जी अल्मा स्टार्ट करें। जी बिल्कुल स्टार्ट करें। और आयत नंबर 15 के लिए भी रेडी हो जाएं, जो सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो प्लीज बी रेडी। जी अल्मा स्टार्ट करें। हरफ मुशब्बा माँ जो है वो इसमें इन्ना एक मिनट, माँ क्या बन रहा है, माँ को क्या बनाया आपने? नहीं माँ मसूला हो जाएगा। ये क्या हो गया सिस्टर मास? इन्ना माँ, तो ये माँ जब इन्ना के साथ जुड़कर आया तो ये माँ काफा है ना, ये माँ को रोक रहा है, वो सॉरी इन्ना को रोक रहा है उसके असर से। ठीक ये वो वाला माँ यार, ना तो माँ मौसूला है, ना ही माँ को आपने आई थिंक इसमें इन्ना बनाया था, ना ही वो है। ये माँ एक काफा होता है जो कि इन्ना के असर को खत्म कर देता है। तर्जमे के अंदर आप बताएंगी, बेशक जरूर कहेंगी, लेकिन उसका ग्रामेटिकली वो इसम इन्ना खत्म हो जाएगा, मुब्तदा ही रहेगा। ठीक है। और नहनु जो है वो मुब्तदा हो जाएगा, मुस्ताहज़िऊन जो है वो खबरू इन्ना हो जाएगी। अच्छा, मुस्ताहज़िऊन के ऊपर थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, कौन से बाब से है, इसके रूट लेटर्स क्या होंगे और ये कौन सा कोई खास इसम है? ये इस तफाल से है और ये जो है ये इस्मुल फाइल है। रूट लेटर्स क्या है? और इसका हमजा हमजा आखिर में, हमजा। ठीक, अब ये कौन से बाब से है? बाबे इस्तिफाल से, बाबे इस्तिफाल से। और ये फिर खबर बन रहा है नहनु मुब्तदा के लिए, और ये जुमला इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस पे एनिमेशन में डालना भूल गई। अच्छा, अब ये पूरा जुमला इसमें हो गया, तो अब इसका तर्जुमा करें। बेशक हम मुस्ताहज़िऊन मजाक उड़ाने वाले हैं। हाँ, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं, या बेशक हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले हैं। ठीक हो गया इतना हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 14 आयत यहाँ पे कंप्लीट हुई। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर अलमास। आगे आखिरी आयत है जी सिस्टर राबिया, आपने माइक अपना म्यूट किया है, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज तो वैसे भी बड़े अब अरसे बस सुनने को मिलती है, सही जो बात है। स्टार्ट करें। अल्लाहु
क्योंकि इसमें मारफा है इसलिए इसको मुब्तदा बना देंगे। इसके आगे यस तहज़ीउ आ रहा है। यस तहज़ीउ पहले मजारे है, हाज़ा हमजा इसका मादा है और बाबे इस्तिफ़आल से है, हुआ इसमें फाइल है। तो फिर आगे बिहिम बिहिम मुरक्कब जारी है और ये मुतल्लिक फेल बन जाएगा, ये मुतल्लिक फेल हो जाएगा। तो यस्तहज़ीउ बिहिम ये बन जाएगा जुमला फेलिया। बिल्कुल ठीक। और इसके बाद फिर वाव अतफ आ रहा है तो ये जुमला फेलिया होकर के मातूफ भी बन जाएगा, मातूफ अलई। मातूफ अलई, जी जी सॉरी। और ये जो अल्लाह मुब्तदा बनाया था इसके अभी लिए आगे उसको बाद अभी हम या मुद्दू की तरफ आते हैं। या मुद्दू पे फिर अब आगे या मुद्दूहुम, तो या मुद्दूहुम ये फेल मुजारे है, मीम दाल वाओ इसका मादा है, बाबे मादा दोबारा बताएं, मादा दोबारा बताएं। या मुद्दू, अरे गलत कह दिए थे, मीम दाल 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 पे तो तशदीद है जी बिल्कुल। हाँ ये मीम दाल 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 पे तशदीद है, ये मुजाफ का कायदा लग रहा है। परफेक्ट, बिल्कुल सही लग रहा है जी। बाबे नून से है ये। परफेक्ट। और हुम इसमें मफऊल बन रहा है। और पहले हम यमुद्दू का फाइल निकाल लेते हैं। यमुद्दू में फाइल क्या होगा? फाइल हुआ है इसका। वेरी गुड। और ये हुआ किधर जा रहा होगा? ये हुआ भी जो है ना अल्लाहु लफ्जुल जलाला की तरफ जाएगा। जी अल्लाहु की तरफ जी। ठीक, आगे हुम आ जाए। हुम मफूल है। बिल्कुल ठीक। आगे फी जार है और तुग़यानिहिम मुरक्कबे इजाफी है और मुरक्कबे इजाफी होकर के फी जार के लिए मजरूर बन रहा है और ये जो पहले मातूफ लय आया था उसके लिए ये मातूफ बन रहा है। और ये पूरा मुरक्कब मातूफ अभी ना बनाए इसको, अभी मातूफ बाद में बनेगा। पूरा पूरा जुमला फेलिया बनाएंगे अभी। ये जार मजरूर मिलके हम, अच्छा ये जार मजरूर है ना, ये कुछ तरकीब के मुताबिक इसको या माहूना का मुतालिक बनाया गया है और कुछ तरकीब के मुताबिक या मुद्दू का मुतालिक बनाया गया है। ज्यादातर जो है ना, अगर 10 तरकीब देखी जाए ना बिलफर्ज, मैंने तराजिम जो देखे हैं तराजिम में, तो 8 जो तराजिम है उन्होंने या माहूना का इसको मुतालिक बनाया है, मुकद्दम कर दिया है। तो सिर्फ 2 होंगे जिन्होंने या मुद्दू का मुतालिक बनाया है। तो मैं इंशाल्लाह दोनों की तरफ से इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूंगी। ज्यादा जिन्होंने किया इसलिए पहली तरकीब में उन्हीं को बता रही हूँ। जो 8 अगर तराजिम हो तो उन्होंने या माहूना का इसका मुतालिक मुकद्दम किया है, तो वो बना लेते हैं। और तो यानी का बताऊंगी ये फ़ौलान के वजन पे है, इसके अंदर एक मुबालगा पाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा सरकशी। और अब आ जाए या माहूना की तरफ। या माहूना फील मजारी है, हमजा मीम हा। हमजा इसमें नहीं है, आइन है। नहीं, आइन है। आइन मीम हा मादा है, बाबे सीन से है और हुम इसमें फाइल है। अब ये जुमला फेलिया बन गया। बिल्कुल, ये जुमला फेलिया कुछ बनेगा, ये जुमला फेलिया हाल बन जाएगा। हाल बन जाएगा। हुम का हाल ये बनेगा। यहाँ पे जो यमुद्दू में जो हुम आया है, बिल्कुल जो मफूल है ना इसका, ये जुल्हाल, इधर मैंने जुल्हाल भी लिख दिया, ठीक है, कि ये जुल्हाल बन रहा है। हुम की ज़मीर जो मफूल है और हाल उसका, कि उन लोगों का हाल बयान किया जा रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पे अब ये पूरा, क्योंकि जुल्हाल अपने हाल को साथ लेके चलेगा, तो इसका मतलब है कि या माहून इसके साथ है, हुम के साथ है, और हाल, ये जो हाल जो जुमला फेलिया बन रहा है उसका एक मुतालिक भी है, तो वो अपने मुतालिक को भी साथ लेके चलेगा। तो फिर क्या है कि ये सारा हिस्सा पूरा एक ही बन रहा है। या मुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम या माहून, ये इतना पूरा हिस्सा जो है, अब पहले वाले हिस्से को आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि ये मातूफ अलई, तो ये पूरा दूसरा जुमला फेलिया जो है ये मातूफ हो गया। अब ये पूरा कौन सा मुरक्कब बना? ये मुरक्कब अत्फी। परफेक्ट। ये पूरा मुरक्कब अत्फी मुब्तदा के लिए क्या होगा? मुब्तदा के लिए खबर बन जाएगा और खबर बन के ये जुमला इस्मिया हो जाएगा। जबरदस्त। अब इसका आप तर्जुमा करें। इसका तर्जुमा,
अल्लाहु यस्तहज़िउ, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। बिहिम यानी उनका, यानी उनके साथ, अल्लाह उनका मजाक उड़ाता है। ये उर्दू और अरबी का वही बोलने का तरीका फर्क अच्छा, है। ये यहाँ पे मजाक अब्बास करने से से मुराद ये नहीं कि अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है ना, तो अभी जिक्र भी हो जी जाएगा। जी तो वो जो ढील दे रहा है वो इसी चीज में कि ठीक है, तुम जिस खुशफहमी में मुब्तला हो कि तुम लोग समझते हो कि तुम लोग तो इस्लाह कर रहे हो और तुम लोग तो ईमान वालों के पास जाके कुछ कहते हो, पीठ पीछे होते कुछ हो, तो ठीक है, और तुम लोग समझते हो कि हम तो ईमान वालों का मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो इनके पास जाके झूठ बोलते हैं, तो अपनी जोम में तुम लोग ये समझते हो कि तुम मजाक उड़ा रहे हो, पर असल में तुम लोगों का खुद ही मजाक उड़ रहा है कि अगले जहां तुम लोगों को जाके पता चलेगा तुम लोगों के साथ हुआ क्या है, होगा क्या आगे जाके। तो इस सेंस में अल्लाह ताला जो है ना कह रहे हैं कि अल्लाह भी इनसे मजाक ही कर रहा है कि इनको इन्हीं के वो उसमें मस्त रखा हुआ है, इन्हीं की जो ये गुमान कर रहे हैं उसमें। जो ये गुमान कर रहे हैं। और वयुमुद्दुहुम, और उन्हें ढील दे रहा है, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपने तर्जुमा किया ना, ये उसके मुताबिक है कि अगर हम इसको यमुद्दुहुम का मुतालिक बनाएं। अब आप ये समझें कि ये फी तुग़यानिहिम यामाहून का मुतालिक है और मुकद्दम है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा आप इसके अंदर जोर पैदा करेंगी क्योंकि मुतालिक पहले आ गया है फेल से। अपनी सरकशी में ही वो यामहून हैरान है, अपनी सरकशी में ही वो भटके हुए हैं या भटकते हैरान है या अंधे। हाँ, के मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये हाल बयान हो रहा है कि अल्लाह वो ढील देता है, मतलब अल्लाह ढील देता है, अल्लाह ढील देता है उन्हें इस हाल में कि वो अपनी ही सरकशी में भटके हुए हैं, अपनी ही सरकशी में अंधे हुए हैं। अब यहाँ पे या अमा हूँ, ये जो आइन मीम हा, ये भी अंधे होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधों आंखों से अंधा होना, ये नहीं कि उन्हें नजर ही कुछ नहीं आता, नाबीना नहीं है, वो देख सकते हैं, लेकिन अक्ल के अंधे। मतलब उनकी बसीरत पे, जैसे वो पहले था ना कि उनकी फी अब्सारिहिम गिशावा, उनकी आंखों पे उनकी निगाहों पे एक पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो उसके मतलब कि अक्ल के अंधे हुए हैं कि उन दिखा नजर आने के बावजूद भी वो कुछ देख नहीं रहे। तो वो अपनी ही सरकशी में, ये जो ही का जोर इसलिए लगा क्योंकि ये मुकद्दम हो गया है, मुताली के फेल मुकद्दम है फेल से, तो इसके लिए इसमें जोर डाला है। तो ये तर्जुमा जो है ना, ज्यादातर ने इसी की तर्जुमे को फॉलो किया है। अब मैं वो बताती हूँ जो कि बहुत कम है, लेकिन चूंकि है तो इसलिए वो भी बता देती हूँ कि यहाँ पे फी तुग़यानिहिम, ये मैंने हिस्सा ब्लैंक छोड़ा है कि अब इसको हम इसको बनाएंगे मुताली के फेल यमुद्दु के, ठीक है। इस यमुद्दु के बनाएंगे तो अब हम कहेंगे कि वो ढील देता है उन्हें उनकी सरकशी में, जिसे हमने पहले तर्जुमा किया था, ठीक है, कि वो ढील देता है उन्हें उनकी सरकशी में, ये अल्लाह उनको उनकी सरकशी में ढील देता है इस तरह से, इस हाल में कि वो अंधे भटके हुए हैं, अंधे पड़े हुए हैं, भटके हुए हैं या हैरान फिर रहे हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्हें अपनी सरकशी नजर नहीं आ रही, तो ये उनका हाल है। तो ये इसलिए मैंने आपके सामने दोनों तरकीब रख ली हैं कि आप इस तरह से भी हो सकता है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर राबिया, बहुत अच्छा किया आपने, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे, आप सबको बेहतरीन जज़ा दे, आप सब बहुत माशाल्लाह लगन से कर रही हैं और बहुत दिल से खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैम शुरू में बिल्कुल तरकीब समझ ही नहीं आती थी, हमें तो लगता था हम सीख ही नहीं सकेंगे, लेकिन माशाल्लाह देखिए आप में तो बहुत माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आई है, बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह, जितना फ्लुएंट आप तेजी से सारा कुछ कर रही हैं, ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है माशाल्लाह। ये आपके अपना शौक, अपना आपका जज्बा और आपकी अपनी मेहनत है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह बरकत अता फरमाए। मैम आप ही तो सिखाती हैं, इसीलिए तो इतना सीखे। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का फजल है। आज की आयत को हम थोड़ा सा खुलासा देख लेते हैं। आयत नंबर 11 में था कि मुनाफिकीन की जो मुनाफिकीन जो है वो इस्लाह के नाम पर फसाद अंगेजी करते हैं, कहते ये हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो अब इस्लाह के नाम पर वो ही फसाद बर्पा करते हैं। आयत नंबर 12 में है कि मुनाफिकीन ही फसाद बर्पा करते हैं लेकिन उन्हें इसका शऊर नहीं होता। और 13 में है कि मुनाफिकीन खुद को बहुत अक्लमंद और ईमान वालों को बेवकूफ समझते हैं, जबकि वो खुद ही बेवकूफ है। आयत नंबर 14 में है कि मुनाफिकीन का दोगलापन, मुंह पर कुछ पीठ पीछे कुछ, और मुनाफिकीन का साजिशी और मजाक उड़ाने वाला मिजाज। साजिशी किस लिहाज से कि वो क्या करते हैं कि ये ईमान वालों के पास जाके कहते हैं हम तो आपके साथ हैं, और अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम लोगों के साथ हैं, हम तो बस हम तो उन्हें धोखा दे रहे हैं, हम तो उन पे हंस रहे हैं, हम तो उनका मजाक उड़ाने वाले हैं।
اور آیت نمبر 15 میں کیا ہے کہ منافقین کا ایمان والوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ کا ان پر غضب، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ تو اپنے ذوق میں خوش ہو جاؤ، تم لوگوں کو میں ڈھیل دے رہا ہوں، اور اللہ جب رسی کھینچے گا تو کب وہ وقت پھر ان کی پہنچ سے دور ہو چکا ہوگا، اس وقت پھر وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس وقت صرف ان کے لیے عذاب ہوگا۔ اللہ کا منافقین کو ڈھیل دینا کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکے رہیں۔ تو یہ آج کی آیات پہ ہم نے کور کیا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سورۃ البقرہ کو آسان طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں انشاءاللہ۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔